and viewer of various channels. And Vijender Singh ji has also organized and chaired international conferences, workshops, and seminars in collaboration with the academic community. Without taking much time, I would like to invite Dr. Vijander Singh for his lecture. Please, sir. Thank you, Krishna sir, for a nice introduction. I have a question. May I know how much time I have for this talk? Sir, 1 hour. Okay, thank you for letting me know. हाँ और सर एक वो था रिक्वेस्ट कि आप अपना जो बाइलिंगुअल है ना वो ही रखें सर मोड. You mean Hindi and English? हाँ ये सर हिंदी Okay. और इंग्लिश और मोस्टली हिंदी सर. Okay, I will try my best. अभी मेरा मोड 3 मोड हो चुके हैं. मैं यहाँ नॉर्वेजियन भी सीख रहा हूँ. हिंदी मेरी मातृभाषा है और इंग्लिश मेरी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है. तो I will manage among both of these language. Thanks for inviting me for this talk. Let me share my presentation here. Is it visible to you, Krishna sir? Yes, sir. Visible है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, okay. So, myself, Vijander Singh, I am Associate Professor in Department of ICT and Natural Sciences at Norwegian University of Science and Technology, Norway. The agenda for this talk is limited to these 4 topic. मैं कहाँ से आया और मैं कैसे यहाँ पे आया वो मैं बताने की कोशिश करूंगा और मुझे ये फंडिंग कैसे मिली और कौन सी फंडिंग मिली जिसके थ्रू मैं यहाँ पे पहुंच पाया और कुछ एग्जांपल्स जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और कुछ मेरा सजेशन रिकमेंडेशन और मेरी तरफ से जो सजेशन और रिकमेंडेशन है वो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं शेयर कर सकूं. However, there are lot of other things which matters for the funding. So, first of all, I would like to give thanks to my research team, and captain of that team was Professor Reena Dadich ma'am, who was my supervisor, and till now she is guiding me at every step. So thank you, Reena ma'am, for being with us, and I am fortunate to be a research scholar of you. Before joining the NTNU, Norwegian University of Science and Technology, I did my postdoc fellowship program. ये एक postdoc जो होती है वो एक PhD के बाद की डिग्री होती है जिसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करें और केवल प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी इसके अंदर होती है. तो दिस postdoc is we can say a work experience on a live project after the PhD. And expectation for the postdoc is you must have मेरा मतलब है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा और वो एक्सपर्टाइज आपको मिलेगा जब आप पीएचडी कर रहे हैं उस दौरान. यानी मेरा ये सजेशन है कि आप पीएचडी के अंदर जो भी काम करें वो इतना अच्छी तरीके से करें कि कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले उस फील्ड से रिलेटेड तो आप जो है बेस्ट सूटेबल पर्सन हो उस फील्ड के लिए.
ताकि आपको प्रोजेक्ट फंडिंग या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी मिले. Okay, so it was all about the postdoc, which I did in the Cyber Physical System Lab at NTNU Norway, in which I am currently working. Before that, I did my PhD from Vanastali University and master's from the Rajasthan Technical University. Both degrees are in computer science and engineering. और अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो करीबन 15 years टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में और मणिपाल और एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर. Before going into depth, I will request you to provide your department area of research so that I can get some idea about your field. Sir, as I'm from sports psychology, and No, we no, no, have no. Oh, excuse me, excuse me. You can scan this code on your mobile and provide the answer on it. Do not need to speak. It will take long time for 250 students. Scan this code. स्कैन करना कहाँ पर है सर? Open your mobile, or you can use this code on top of this slide and open menti.com website. For example, if you can see me, I am scanning this code and I can open. If I scan it, I can open it like this. So it will display this question and two options. Can you see this, Krishna sir? Yes, sir, it's opened. Yeah, thanks. Yes, I am getting the response, and responses are in front of you as well. Yeah. Okay, history, literature, Urdu, modern India. So I think it is a mix of all the domain. Only 4 responses. Okay, nice. 12. Wildlife, good. Yeah, education, modern India, tribal sociology, mathematics, literature, geography. Yes, gender education, Urdu. Yeah, nice topic. Okay, 15 seconds more, then I will switch over to next slide. Twenty. Okay, graph theory. Yeah. Commerce, flood. Flood can be included into environment, I think. Okay, so I get some idea what uh, people belongs to, what student belongs to area. So it is a mix of every domain. And nice to see that blend. Okay, I will try to give all the means I will take consideration all the field. Do not think that since I belongs to computer science, I will only talk related to computer science or technical education. So I will be going to talk in general for all the domain. Okay.
Again, I will request you to provide your thinking about the funding. That means, what do you think about the why you need this fund as a research scholar? So do the same task, scan this code and provide some answer why you need fund for your PhD or research. Yes, significant research. Good answer. Yeah, dedicated research. Very good. Yeah, support research project. Very good answer. I need few more. Yes, for quality, it should be research. To do research. To do research is a very broad area. Within the research, you must have आपको बहुत सारी एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ती है ड्यूरिंग योर पीएचडी. तो उस तरीके से सोचिए कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर पीएचडी. तो और उनमें से किस प्रोसेस के लिए आपको फंड चाहिए, मनी चाहिए. तो उस तरीके से आप आंसर देने की कोशिश करें. यस, क्वालिटी सर्च टू एक्सप्लोर व्हाट. You can mention here data set. I can give you the clue to gather the data. For PhD is again a very broad term. Okay, some of the answers I find interesting and which I think those does matter. So okay, thanks for your responses. I will take into consideration all these responses during the talk. Yes, conference is a good answer. So conference include traveling, conference include the fee. Yes, it's a good answer. Yeah, okay. Thanks for responding. So the objective to include this questionnaire was so that I can have some idea what do you think about the funding. So now I can explain you why we need fund when we pursue PhD. So some of the major process or part of the PhD need some money. For example, uh, one of you already provided this answer to support research project. Yes, if you have a project but or आई वुड से अगर आपके पास प्रोजेक्ट है और आपके मन में या दिमाग में प्रोजेक्ट का आइडिया है लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको कुछ मनी चाहिए या इम्प्लीमेंट करने के दौरान आपको कुछ फंड चाहिए. इन दैट केस आपको किसी ना किसी एजेंसी से अप्रोच करना पड़ेगा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करें. एंड देन ऑपरेशनल कोस्ट, दैट मीन्स अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए तो आपको फंड चाहिए. उसके बाद आपको पब्लिकेशन, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया है आपकी पीएचडी के लिए, जो काम आप कर रहे हैं उसको पब्लिश करना है.
और पब्लिश करने के लिए आपके पास टू ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन गो विद द जर्नल और कॉन्फ्रेंस। और जर्नल की बात करें तो ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं वो चार्ज लेते हैं, तो अगर आप उन जर्नल्स में पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको मनी चाहिए, और कॉन्फ्रेंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए और ट्रैवलिंग फंड भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है that is, so we have covered this one. Now traveling means अपने को कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, और अपने को आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इसलिए कि अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है और पर्टिकुलर किसी सोसाइटी के पास या एनवायरनमेंट कंडीशन, जैसे एक स्कॉलर ने यहाँ पे आंसर मेंशन किया फ्लड और एनवायरनमेंट, तो आपको फ्लड एरिया में जाना पड़ेगा डेटा गैदर करने के लिए, पॉसिबिलिटी है ये। तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके बाद सेम फील्ड वर्क के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और वर्कशॉप अटेंड, या अगर मैं बात करूं आपके सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिसोर्स पर्सन को बुलाना जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, आपकी टॉक दे सके, तो इन चीजों के लिए आपको है जो है मनी की रिक्वायरमेंट होती है। Many more are there, but these are major, which supported by some funding agencies. Okay, so I will start taking example how I received my fellowship. So I will try to explain by going on the website here. Okay, so this is the website from where I receive my funding. It's European Research Council for Information and Mathematics. They provide funding for the postdoc. So I applied here, and इट हैज सम प्रोसेस। इसके अंदर हम अपने को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसेस के लिए आपको जो है एप्लीकेशन अच्छी तरीके से रीड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, आई अप्लाइड 3 टाइम्स, यस। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसके अंदर मुझे सक्सेस मिली। उससे पहले मैंने 2 बार अप्लाई किया था तो मुझे सक्सेस नहीं मिली थी। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको निराश नहीं होना है जिंदगी में कभी भी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके अंदर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो सकता है आपसे कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको चांस मिल गया। और भी बहुत सारे रीजन है कि आपको चांस क्यों नहीं मिला। यू नो बेटर व्हाट आई मीन। तो आपको ट्राई करते रहना है। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि आपको निशाना और तीर चलाना है, निशाना लगे या नहीं लगे, लेकिन आपको कोशिश हमेशा करनी है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, और if you go to former fellow, then you will find my name, and here you will find what I did here. This is a scientific report. This was my summary of my research. It is open and you can access it, and you can look here to get an idea. Because of word limit, I did not, मैंने बहुत सारा इसमें मेरा रिसर्च पेपर है और भी रिसर्च फाइंडिंग है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंक्लूड किया। तो ये आप चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद
ये तो हुई मेरी बात। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी फंडिंग सोर्सेज अवेलेबल है। और मोस्टली मैं जब बात करूंगा तो मैं यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं वही एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूंगा। और इंडियन एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स वर्क आपको कुछ आइडिया मिले हो। डीएसटी होती है, एमएचआरडी होती है, तो वहाँ पे एजेंसीज हैं वो प्रोवाइड करती है फंडिंग। तो अभी मैं एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। अभी लेटेस्ट एक कॉल निकली हुई है फंडिंग के लिए, जो कि प्रोफेसर्स के लिए भी हैं, वो भी इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अगर वो इंटरेस्टेड हो और उनका जो है लिंक हो। तो यहाँ पे ये नॉर्वेजियन नेम है उत्फोस्क। इट इज अ नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट फॉर हायर एजुकेशन एंड स्किल. The objective of this department is to improve the education in higher education or technical education, not only technical education, for all the domain of higher education. और जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में एमएचआरडी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी जो करंट में है, इंडिया की इकोनॉमी फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी है और फॉरेन में इंडिया की काफी चर्चा होती है। सो सभी लोग अप्रोच करने में लगे हुए हैं इंडिया के साथ कुछ न कुछ कोलैबोरेट करने में। ये आपके लिए अच्छा चांस है, अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री अमंग ऑल अदर, जहाँ पे नॉर्वे जो है इंडिया के साथ काम करना चाहता है। और ये फंडिंग जो है इसमें काफी चीजें हैं। जैसे मैं और कोई इंडियन यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करूं तो मैं पीएचडी के स्कॉलर को यहाँ पे कुछ दिन के लिए बुला सकता हूँ, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को कुछ दिन के लिए बुला सकता हूँ। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज नॉट यू मीन्स एज ए पीएचडी स्कॉलर आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सुपरवाइजर हैं या प्रोफेसर हैं या आपकी रिसर्च टीम है वो इसको अप्लाई करे, और उसके थ्रू आप जो है एक फॉरेन विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप कुछ अपना रिसर्च का जो है वो काम कर सकते हैं। ओके, सो आई मीन टू से दिस इज नॉट फॉर अ पीएचडी स्कॉलर। आप फिल नहीं कर सकते हैं, आपके सुपरवाइजर या प्रोफेसर या आपका जो रिसर्च लीडर है वो इसको फिल कर सकते हैं। और अमाउंट इज 90 million. इट इज वेरी गुड अमाउंट for a project. हमको चार्ज भी मिलेगा क्या वहाँ पे आके, या चार्ज अभी मैं देना क्वेश्चन पड़ेगा? आपको क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी टू से, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम और आई वांट टू कवर मैनी थिंग्स सो दैट you should have some idea. ओके सर, ओके। Yeah, because if I start answer, I will not able to complete my lecture. Sorry to say. Yeah, you can put answer later on in the chat or through your professor. Okay, then next is next source which I want to share, which is a good website in the Norway. This is Job Norge. So here also it is a single platform for whole Norway, which provide information, सूचना means PhD के लिए, पोस्ट डॉक के लिए और परमानेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूं PhD और सर्च करूं तो यू कैन सी हियर आई कैन see several PhD opportunities here: medical engineering, cyber security, immunology, mathematics, medicine, education, ecology, biotechnology, and many more. So it's a good environment, a good platform to search the opportunities in Norway. But the
so this is since you are already in the process of PhD, तो आपको जो है यहाँ पे जो later on जब भी आप अपना PhD अच्छी तरीके से खत्म करें, उसके बाद आप पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने अगर पोस्ट डॉक कीवर्ड यहाँ पे डाला है तो 80 वैकेंसीज आर देयर और दे आर इन डिफरेंट डोमेन। So don't think your domain is not in the list. Your domain definitely will be in the list. आप अपने जो अपना जो काम है वो यहाँ पे भी पाएंगे। जैसे human, this is human geography. I don't know what does it means, but it's related to geography. Okay, social media. So different domains are there where you can get the application and funding, and these are jobs. These are not the degree. ये डिग्री नहीं है, ये जॉब है। यहाँ पे पोस्ट डॉक PhD जो है यहाँ पे एज अ जॉब कंसीडर किया जाता है। ओके, so so this was about the Norway, means Norway के अंदर क्या चल रहा है। Yes, okay. हाँ, okay, then I'm transferring to my current neighbor country, that means in Germany. Germany also provide funding for many things, as you have mentioned इन क्वेश्चनियर कि आपको ट्रैवलिंग के लिए फंड चाहिए, आपको कॉन्फ्रेंस के लिए फंड चाहिए, आपको इक्विपमेंट के लिए फंड चाहिए। तो वो जो है यहाँ की कुछ एजेंसीज है जर्मनी की, वो प्रोवाइड करती है दैट, एंड मोस्ट कॉमन वन इज DAAD. Let me find the website of it and let us uh, yes. So you can see here again, yes, they have a dedicated एक dedicated उन्होंने प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए बना रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में जो है आप देखेंगे कि प्रोसेस क्या है। बाई नेशनली, रेड कलर के अंदर जो है वो पार्ट अगर आप पढ़ेंगे, बाई नेशनली सुपरवाइज्ड डॉक्टरल डिग्री स्कॉलरशिप। इसके अंदर एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे समथिंग आप पाएंगे कि सैंडविच PhD। यस, या सो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। PhD सैंडविच मीन्स आप पहला पार्ट इंडिया में करें और बीच का पार्ट कुछ टाइम के लिए ट्रेवल कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, और बाद में फिर से आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके वर्क करें। तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप कुछ टाइम जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में काम करें। उसके लिए आपको अगेन आपके फील्ड का जो है रिसर्च टीम ढूंढनी पड़ेगी, सो दैट आप उनके लिए बेनिफिशियल हो। हमेशा ये मत सोचे कि केवल जाके आना है, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो वहां पे काम किया है इंडिया में वो उनके लिए यूजफुल है। अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो दैट मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी हियर। सो ओके, सो व्हाट इट इज अ PhD सैंडविच प्रोग्राम, जिसके अंदर डिग्री आपको इंडियन यूनिवर्सिटी की मिलेगी, लेकिन आप ट्रेवल कर सकते हैं और आप अपनी फाइंडिंग शेयर कर सकते हैं जर्मनी की यूनिवर्सिटी में। और प्लस जर्मनी के जो लोग हैं उनकी जो फाइंडिंग है वो आप गेट नॉलेज, उसका नॉलेज भी आपको मिल सकता है। ओके, तो आप इसके लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ट्राई टू अप्लाई इट। बहुत सारे डोमेन्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर भी। किसके ऊपर कि आपके फील्ड के लिए आपको जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सारी चीजें यहाँ पे है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि अबाउट द स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। आप देखेंगे कि
जो भी पीएचडी के अंदर रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप 3 साल बाद अप्लाई करने की सोचें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर 3rd ईयर ऑफ पीएचडी यू आर नो लॉन्गर एलिजिबल। और डेडलाइन जो है 20th of October एवरी ईयर। सो अभी टाइम है आपके पास, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, तो अप्लाई करें इसमें। इट्स ए गुड प्रोग्राम। Okay, that was all about DARD India. Then next major funding agency is Horizon. It also provide funding for many things. So if you can see here, Horizon Europe is EU key funding program for research and innovation with budget of 95.5 billion. इसको मैंने अपने हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, तो ये कोई 95 अरब रुपए बन रहे थे। तो मैं तो जीरो गिनते गिनते ही भूल गया था काउंटिंग, क्योंकि अभी मैं करोड़ के आगे मुझे याद नहीं है कि क्या होता है। फिर मैंने गूगल से पूछा तो इसने बताया कि ये कुछ 95 करोड़ अरब, सॉरी, और 50 करोड़ के लगभग होता है। तो ये 27 तक का प्रोग्राम है ये इनका, होराइजन यूरोप। यानी ये इतनी फंडिंग जो बांटेंगे वो 2027 तक बांटेंगे। और इसके अंदर आपको फिर से अगेन रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, ट्रैवलिंग भी है, इसमें वर्कशॉप भी है, इसमें पीएचडी विजिट दूसरे कंट्री में आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो अगर अपन बात करें कि या this is next source of funding. You can note it down, all the Horizon, only note keyword like Horizon, then DARD. You will find every information on the website. But my objective is to go through you all the keywords so that or major funding agencies. Yes, this is Marie Curie. It is a renowned fellowship program, which is again for you people. You can go through it. I think every PhD scholar apply for it if he or she knows about it. So Marie Curie program, you can note it down and go through it and apply for it. It provide opportunity for PhD scholars to engage collaborative research, international experience, and access funding for their doctoral studies and research project. यानी आपने जो आंसर दिए थे मेरे क्वेश्चन के, उन सभी चीजों के लिए लगभग लगभग सभी फंड ये कवर करता है। तो आप इसमें अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पीपीटी की बजाय थोड़ा इसमें लाइव एक्सप्लेन करने में विश्वास कर रहा हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि किस तरीके से अपन सर्च करें। यहाँ पे ये है यूरा एक्सेस वेबसाइट, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसमें मैंने जैसे कीवर्ड अगर मैं डालता हूँ, जैसे आप में से किसी का भी जियोग्राफी एरिया है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लेट मी सर्च। Okay, so you can see here there are a lot of opportunities within the Europe. This, for example, PhD position at University of Autonoma Barcelona, funded by Touchco Found project. People working here
वर्क ऑन प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो काम करते हैं प्रोफेसर्स वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और जो भी वो फंडिंग है उसके थ्रू वो पीएचडी स्कॉलर रिक्रूट करते हैं। जैसे मैंने बताया पीएचडी यहाँ पे एज ए जॉब है, तो उनको सैलरी मिलती है 3 साल तक के लिए। तो वो जो है अपनी पोजीशन जो है वो कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं। तो उनमें से एक ये है यूरा एक्सेस, जिसके थ्रू आप एक्सेस पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी पीएचडी पोजीशंस है या पोस्टडॉक पोजीशंस है या ट्रैवल ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने जियोग्राफी एरिया डाला है, तो ये एक पीएचडी की पोजीशन अवेलेबल है, और उसके अंदर रिसर्च फील्ड इंक्लूड है सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी साइंस। नीचे भी आपको दिखेगा बहुत सारे रिसर्च फील्ड रिलेटेड टू, ये ग्राफी को ले रहा है इसलिए इसने डेमोग्राफी को भी इसने ले लिया, जियोग्राफी। सो मैंने जियोग्राफी सर्च किया तो जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे फंडिंग पोजीशंस जो है वो आ गई है, और नेक्स्ट पेज पे भी है। ओके, तो आप यूरा एक्सेस के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद लेट मी क्लोज ऑल दीज which have been already covered. So we have covered the horizon, then we have already covered this. Yeah, this is part of horizon. This is one web page where I, जहाँ पे मैंने ये ट्राई की है कि ईयू जो यूरोपियन यूनियन, ईयू अगर मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो किस किस फील्ड के अंदर जो है सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे साइलम एंड माइग्रेशन के लिए उनके पास अलग फंड है, जिसके उसके बाद कुछ कस्टम प्रोग्राम्स है, वो उसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है आपका प्रोग्राम उसके अंदर मिल जाए। इरास्मस इज ऑल्सो अ गुड प्रोग्राम, जिसके अंदर एज ए स्टूडेंट, और आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कि पीएचडी के लिए वो ट्रैवल ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे स्टूडेंट जरूर आते हैं मास्टर्स के लिए, यानी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है ये एक तरीके का इरास्मस, और काफी रिनाउंड प्रोग्राम है, फेमस प्रोग्राम है। तो इसमें भी आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। थिंक टैंक ये मैंने इसलिए लिया है कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको रिसोर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सर्च कर सकते हो कीवर्ड के थ्रू। ईयू फंडिंग आप या रिसर्च फंडिंग इसके अंदर एज ए कीवर्ड डालोगे। लेट मी ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल इफ आई हैव एनीथिंग। ओके, you can note it down because I could not find any live example or website right now, but मेरा मतलब ये कि ये कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन इसमें आप अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप पे जो है गाइड टू ईयू फंडिंग, एडवांस सर्च के अंदर इसमें अगर आप ओपन करेंगे ये थिंक टैंक यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड अगर आप इसमें एडवांस सर्च में जाएंगे तो यू कैन सर्च द फंडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट a funding agency for the research fund. Then Eura Access India, again you can see here we have one more funding, European funding agency, or we can say information provider for the India. So here you have to become a member, and then you can search
the research funding information on Eura Access. Yes, I think we already discussed about it into one of the link. Yes, this is repetition. Yeah. So yeah, so this provide you the again all the openings related to your keywords, and in every country of Europe. You can see here it in Belgium, Spain. Spain has quite long list of vacancies. Yeah, so here you can again search the PhD postdoc positions, which is funded by some agencies. This is related to research in Germany, where you can find the since you are a PhD scholar, so this is not applicable for you. This will be applicable for you. Postdoc after PhD, you can pursue the postdoc, and you can find the opportunities here. डोंट थिंक दैट अभी आप पीएचडी कर रहे हैं तो पोस्ट डॉक तो बहुत लेट की बात है। आप जो अभी इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, यानी आपकी जो तैयारी है वो अभी करनी पड़ेगी। आपको पीएचडी एक अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, जिसके अंदर जैसा कि मेरे से पहले जो बता रहे थे अशोक गुप्ता जी, उन्होंने एथिक्स पे बात की थी। तो आपको वो सारी चीजें याद रखनी है ड्यूरिंग योर पीएचडी प्रोसेस, जो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज दैट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द पीएचडी एंड रिसर्च एथिक्स। क्योंकि यहाँ पे एथिक्स को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे रिसर्चर्स के पेपर जो है रीट्रैक्ट होते हैं। रीट्रैक्ट का मतलब होता है कि उनके पेपर पब्लिश तो हो गए, लेकिन पब्लिश होने के बाद जो है उन पेपर्स में कुछ इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने अभी एक सोशल मीडिया लिंक्डइन पे पढ़ा था कि वन ऑफ द पर्सन जो कि हाई डेजिग्नेशन पे थे, लेकिन उनके जो पेपर हैं वो ऐसे जर्नल में उन्होंने पब्लिश कर रखे थे जिनके रिव्यूअर एडिटर वो जो है वो उन्हीं के स्कॉलर्स थे। तो लेटर ऑन जाके उनको वो प्रॉब्लम हुई और उनके पेपर जो है रिट्रैक्ट हो गए, यानी पब्लिकेशन से वापस आ गए। तो वो जो है बहुत ही शेमफुल पोजीशन होती है किसी भी रिसर्चर के लिए। तो शॉर्टकट मत अपनाएं, आई मीन टू से, बट दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। RICH, it is again good, I would say, कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी और फेमस वेल नोन रिसर्च फंडिंग सोर्स है, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी वर्चुअल लैब का एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आप जो हैं इसके थ्रू yes, it is a research and innovation staff exchange program through which जो है आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि जो आपके फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, और ये उसके लिए एक्सचेंज फंडिंग प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज से मतलब है कि आप उनके इंस्टीट्यूट में और आ सकते हैं, मे बी वो लोग भी आपके इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। तो ये जो है RICH एजेंसी जो है, रिच एजेंसी जो है, वो इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, उसके बाद मैरिल, यू कैन सर्च अबाउट इट।
हाउएवर मैंने ये देखा कि मैरिल ने अभी जो है करंट में सपोर्ट करना बंद कर रखा है, सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ। आई मैंने कुछ रोबोटिक्स वाले यहाँ पे रिसर्चर नहीं मिले हैं, लेकिन अगर कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड है तो ये टैरीनेट जो है वो वर्चुअल लैब प्रोवाइड करती है रोबोटिक्स रिलेटेड रिसर्च के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप किसी भी जगह पे बैठ के इनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सो इट इज स्पेशली फॉर रोबोटिक्स। Cost is again a recent call for the funding, and deadline is, you can see here, 23rd October 2024. So इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसमें अभी आपके पास टाइम है तो अप्लाई कर सकते हैं। Okay, these were some famous, or we would say renowned or recent openings for the funding, जो कि अभी इनकी डेट है, और ये हर साल फंडिंग प्रोवाइड करती हैं for the different purposes of the PhD process. Now I will try to give you some my personal experience, suggestion, or we would say tips and tricks for the how we can apply for the funding. These are the either PhD scholars or professor who came to the Norway. Can you mute yourself? Okay, so first of all, every call for the funding और जॉब ऑल्सो, अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी, और अगर आप फंडिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कवर लेटर की जो है वो जरूरी होता है। यानी सबसे पहले जो आपका लेटर पढ़ा जाएगा दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कवर लेटर। तो उसके लिए जो है इट नीड योर, यानी आप कौन हैं, आपने क्या काम किया है, उसको हाईलाइट करना है, और आपका मोटिवेशन कि आप उस फंडिंग के लिए कैसे एलिजिबल हैं और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। जब आप ये कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएं, यू शुड बी ऑनेस्ट, जो आपने किया है वही बताएं। इसके लिए मैं आपको मेरा जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर मैंने वेरी गुड इंग्लिश। और आप तो बोल रहे हैं आपको नहीं आते। Okay, so when I applied here, this is for my associate professor application. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो, अगर अपन बात करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कि कैसे अप्लाई करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट गाइडलाइन आई वुड से, जो मैंने फॉलो किया। तो सबसे पहले मैंने कि मोटिवेशन क्या है मेरा इस पोजीशन के लिए, कि क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे क्यों, क्या अच्छा लगा इस पोजीशन के अंदर या नॉर्वे के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें थी यहाँ पे जो कि एक्चुअल में थी। जैसे अभी अभी अगर आपने यूनाइटेड नेशन और आई डोंट नो कौन सी एजेंसी की जो है लिस्ट आउट हुई है, जिसके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो है नॉर्वे जो 7th प्लेस पे है। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप अप्लाई करें तो उस चीज के लिए पहले रिसर्च करें बहुत सारी, क्योंकि रिसर्च जो है आपके हर चीज के लिए रिसर्च आप करोगे तो आपको आगे जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज के लिए। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए जाएं या पीएचडी का टॉपिक कर रहे हैं तो आप उससे पहले उसके बारे में स्टडी करें बहुत ही अच्छी तरीके से, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, ये पहली बात तो, और वो आपको डिस्कशन में काम में आएगी लेटर ऑन। तो मैंने जो है एनटीएनयू के बारे में लिखा, मैंने नॉर्वे के बारे में लिखा,
मैं यहाँ पे ऑलरेडी था तो मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी। मैं 2 साल से यहाँ था तो मुझे पता था क्या क्या चीजें अच्छी है, कैसे डिपार्टमेंट में काम होता है, वो चीजें थी, और कैसे यहाँ पे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, वो मैंने लिखी एज ए मोटिवेशन। उसके बाद मैंने मेरे बारे में लिखा कि मैं क्या हूँ, और मैंने ये कोशिश की लिखते टाइम, अलाइन किया पोजीशन जो थी उसी से। यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, वो किस तरीके से इस पोजीशन के लिए बेनिफिशियल है। सो वो चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि हु आई एम एंड हाउ आई एम बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस पोजीशन। तो ये भी मैंने यहाँ लिखा है एज फॉर योर हेल्प, यानी ट्राई टू प्रूव व्हाई यू आर द मोस्ट फिट कैंडिडेट फॉर दिस फंडिंग पोजीशन। ये आपके लिए फंडिंग पोजीशन, मैंने मेरी नौकरी के लिए यहाँ पे लिखा था जो चीजें मैंने लिखी। तो मैंने यहाँ पे थैंकफुल टू ऑल द इंस्टीट्यूट एंड ऑल द रिसर्च टीम, जो मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, मेरे बच्चों को भी मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैंने रिसर्च की। अगर मैं राइट नाउ अगर आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूँ, अगर मैं कल देता हूँ, तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट है कि आप मुझे सिखा रहे हैं बाय योर क्वेश्चन। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन, दैट those are gift for your teacher, you are giving something to them। और ये भी मत सोचें कि अगर टीचर आज आपका आंसर नहीं दे पा रहा है तो मतलब उसको बुरा मत समझिए, तो क्योंकि टीचर इज नॉट अ गूगल। ओके, तो सो come to the point, try to prove why you are the most fit candidate for the funding position। आपका रिसर्च उससे अलाइन होना चाहिए फंडिंग से, और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। कौन कौन सी सोसाइटी है, कौन सा ग्रुप है जिसके लिए ये बेनिफिशियल है। सो ट्राई टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाउएवर आपको जो है गाइडलाइन जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाती है। यस, ये मैंने वैसे आपको पहले बता दिया है। डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर द इंस्टीट्यूट, एजेंसी, पीपल वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर द फंडिंग, एंड जो आपका काम है उसको आप उससे अलाइन कर दीजिए कि यस आई एम द बेस्ट फॉर दिस पोजीशन। मोटिवेट रहिए, और इस दौरान आपको ऑनेस्ट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि अपन जो आपने ने काम नहीं किया वो वहां पे लिख दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो यस, अगेन आई विल रेफर टू दी अशोक गुप्ता जी लेक्चर। एथिक्स फॉलो करना है अपने को हर जगह पे, और ये मैटर करती है चीजें। Okay, so this is all about the statement of purpose, which will describe about you in short। उसके बाद ये कुछ एजेंसीज मांगती है, और आपको अगर आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। तो इसके लिए कुछ टिप्स ये हैं कि आप कोलोबरेट कर कीजिए ड्यूरिंग योर पीएचडी अपने जो आपके फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं कहीं भी, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन का जमाना है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आरटीयू कोटा या कोटा यूनिवर्सिटी में ही है, उन्हीं से ही मेरे को कोलोबरेट करना है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, वर्ल्ड जो है अब बहुत ही छोटा रह गया है, हर जगह पे आप कोलोबरेट कर सकते हैं। और उसके लिए आप उनसे अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे कुछ मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, so that you can get good LORs for the researcher who are doing research in your field। So, if you typically require a letter of recommendation from people who supervise you closely in your academic or professional environment and can attest your ability to pursue a challenging graduate program। Yes, आपने पहले ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया है, तो वहां से भी आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई मीन टू से यस,
हाँ, यहाँ पे रिकमेंडेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और जो रिकमेंड करता है उसके पास मेल जाता है और उनसे कुछ क्वेश्चनियर पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, द बेस्ट वे टू गेट स्ट्रॉन्ग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन इज टू वर्क क्लोजली विद सेवरल प्रोफेसर्स एज अ स्कॉलर, जो कि आप इनिशियल स्टेज में हो तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, and do the good work. What does mean I by good work is that means जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। और कुछ टिप्स है आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस तरीके से गुड वर्क किया जा सकता है। ओके, इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस तो वो भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जो है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में लिख सकते हैं, सो दैट डज मैटर। आपके पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो कहाँ पे पब्लिश हुए हैं, उनमें आपने क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या रिसर्च फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप अगेन मैं कहूँगा कि ग्रुप में काम कीजिए। जैसे आप अभी जो स्टूडेंट्स है उनका एक ग्रुप बना लीजिए सेम काइंड के, तो और हर एक पेपर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके सभी का आई आई विल से कि फॉर एग्जांपल आप 4 स्टूडेंट जो हैं वो फ्लड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल इन सम एरिया, या किसी भी तरीके से आपका काम अगर रिलेटेड है 4 और 5 स्टूडेंट का, तो आप एक टीम बनाइए रिसर्च की और जो पब्लिकेशन करें वो कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी आपके पेपर्स की, आपके रिसर्च की। आई मीन टू से इन कोलैबोरेटिव मैनर यू शुड डू द रिसर्च। ओके, सम टाइम इस लाइन में मैंने लिखा है कि इफ यू डोंट हैव मैनी अपॉर्चुनिटी इन योर यूनिवर्सिटी, रीच आउट टू द प्रोफेसर्स इन अदर यूनिवर्सिटी बोथ लोकली एंड अब्रोड। Many of them are open to remote work, so you should be able to land a position if you are persistent enough. Yes, अगर आप उनको पसंद आ गया, आपका काम उनको पसंद आ गया और आपका काम उनसे अलाइन है, तो they will be happy to collaborate with you. रिसर्च असिस्टेंटशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता है आपको एंटरटेन करने का, आपकी मेल्स के जवाब देने का। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रहते हैं, तो बजाय प्रोफेसर और के से कांटेक्ट करने की बजाय आप जो हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स या पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स जो है उनसे कोलैबोरेट कीजिए, सो दैट यू विल गेट द रेस्पॉन्स, बिकॉज दे हैव टास्क, उनके पास कुछ काम होते हैं लेकिन वो टाइम कम होने के कारण उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके कोलैबोरेशन में वो काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपका काम उनके जैसा ही हो। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, मैं जब यहाँ पोस्ट डॉक कर रहा था तो मैं यहाँ पे टीचिंग भी कर रहा था, मुझे यहाँ पे पोस्ट डॉक भी करनी थी, तो मेरे पास दो चीजें एक साथ थी, प्लस यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वर्क चैलेंज, काफी चैलेंजेस थे मेरे पास, तो मैं उनसे बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने जो है इंडिया में कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे या मेरे रिसर्च टीम थी जो मैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया। मैं कोलैबोरेट की बार बार बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप पॉजिटिव लोगों से और आपके फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन रखिए, जीवन में वो बहुत ही काम आएंगे। ओके, तो मैं उनकी हेल्प से मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, मेरे जो चैलेंजेस थे, टेक्निकल चैलेंजेस, हालांकि वो यहाँ के मेरे एनवायरनमेंट या और दूसरे चैलेंज तो नहीं दूर कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं जो है टेक्निकली कहीं नहीं फंसा। अगर फंसा तो मैंने उनसे हेल्प ली थी। सो मेरा मतलब ये है कि अगर आप रिसर्च में काम कर रहे हैं और आपको फंडिंग चाहिए, तो आप पोस्ट डॉक, पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं यहाँ पे जिनके पास फंड है उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। दैट इज आल्सो अ गुड आइडिया एंड डेफिनेटली दे विल हैव सम टास्क फॉर यू, उनके पास कुछ ना कुछ काम होगा। और एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं कि उनको जरूरत होती है डेटा कलेक्ट करने की, एक्सपेरिमेंट रन करने की,
रिजल्ट को एनालिसिस करने की, और बहुत इजी टास्क अपन कह सकते हैं कि लिटरेचर और सर्वे राइट करने की। तो ये चीजें जो है वो हो सकता है कि आप उसमें उनको हेल्प करें और वो आपकी हेल्प करेंगे इन रिटर्न। सजेशन, first thing that is very very important, many time I saw many of the please mute your mic, Veena Sani. Okay, thank you. Okay, yes. So many of the funding agency require or mention in their funding application, your work should be aligned with UN Sustainable Development Goal. अगर आप नहीं जानते हैं तो इन गोल को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 17 जो हैं वो UN गोल्स हैं, और इन गोल्स के थ्रू ही अपन धरती को है वो सेफ रख सकते हैं। इसलिए ये जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाइए, एंड इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, सोसाइटी, अर्थ, एनवायरनमेंट एज वेल। सो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे आप, आई होप। इंक्रीज योर रिसर्च नेटवर्क। जब भी कॉन्फ्रेंस में जाएं, आप उन कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए लोगों से, अपनी फाइंडिंग को शेयर कीजिए, उनकी फाइंडिंग, उनके रिसर्च पेपर्स में ध्यान दीजिए। हो सकता है वहां से कुछ आपको मिले और आप उनके साथ काम करें। नंबर 3 is to do interdisciplinary research with interdisciplinary supervisory team. Yes, आप केवल क्योंकि विद इन सेम एरिया ऑफ रिसर्च बहुत सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं है कि आप अपने फील्ड के लोगों से ही कोलैबोरेट करें, क्योंकि आपके फील्ड को का नॉलेज आपको है। अगर आप वो नॉलेज किसी दूसरे डोमेन के रिसर्चर के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ नई चीज बन के आए, and maybe that beneficial for the funding agency, or maybe beneficial for the society, so that you can contribute to the society environment through your research. Try to do that. Number 3 is it is not always you have to find opportunity for funding. Sometime opportunity finds you. Yes, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैं जब यहाँ पे आया था पोस्ट डॉक करने के लिए, तो मेरा इरादा कभी ऐसा नहीं था कि मैं, इरादा क्या, मेरा ऐसा लगता नहीं था कि मैं यहाँ रुक पाऊंगा, क्योंकि 1 साल का पोस्ट डॉक है, कर लेंगे और निकलेंगे, वापस मणिपाल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, बट फॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे यहाँ पे एक वैकेंसी निकली परमानेंट पोजीशन की, एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली मेरी जो पीएचडी है दैट इज इन द कंप्यूटर नेटवर्क। थैंक यू रीना मैम फॉर दिस। सो और मेरे पब्लिकेशंस भी, ऑफ कोर्स मैंने पीएचडी नेटवर्क में की थी तो पब्लिकेशन भी नेटवर्क में थे, तो दैट अलाइंड विद दिस पोजीशन, और नाउ आई एम हियर एज एसोसिएट प्रोफेसर। सो इस ये लाइन जो है मेरे पे अप्लाई होती है, इसलिए मैंने लिख दिया इट इज। तो आप जो है अपना काम करें, हमेशा ये मत सोचें कि उस काम को फ्यूचर से अलाइन मत करें। आप तो करंट में बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और जो काम करें वो शिद्दत से करें। जैसे पीएचडी है, वो अच्छी तरीके से पीएचडी करें, सो दैट कोई आपको एक तो अफसोस नहीं हो, और अगर आप फ्यूचर में उस पॉइंट से रिलेटेड कभी भी आपको कुछ भी पूछा जाए या कहीं भी अप्लाई करें, सो यू मस्ट बी द बेस्ट फिट पर्सन फॉर दैट पोजीशन। Number 4, share your idea as a storytelling in your research group or social media. Yes, it is very important thing, और आजकल ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास फेसबुक तो नहीं कहूंगा, वो कुछ फालतू चीजों के लिए होता है। एज ए रिसर्चर आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, और जो भी छोटी से छोटी चीज हो जो आपको लगा कि
बहुत अच्छी चीज है और लोगों को इससे फायदा मिलेगा, तो आप उसको लिंक्डइन पे शेयर कीजिए बाय डायग्राम, बाय सेइंग समथिंग, सो दैट इससे दो फायदे हैं। एक तो सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा आपको उस पे कमेंट मिलेंगे, पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे। लोग आपके फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो आपको उसका रिव्यू देंगे, सो दैट यू विल इम्प्रूव दैट थिंग। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो रिसर्च की है, वो इम्प्रूव होगी। और भी बहुत सारी फायदे हैं सोशल मीडिया पे। जब भी आप, अगर मुझे जरूरत है कोई एक्सपर्ट की जो कि काम कर रहा हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं लिंक्डइन पे कीवर्ड डालता हूं तो मुझे मिल जाते हैं कि ये बंदा इसमें काम कर रहा है, ये बंदा इसमें काम कर रहा है। तो ये चीजें भी बेनिफिशियल है। आपको कोई ढूंढना चाहेगा आपकी रिसर्च के बेस पे, तो आप उसको मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा अचीव हो। Yes, so I try to cover some things, and I try to share my experience during this 1 hour talk. Um, yes, if you have any question, what platform you have that you can discuss with your supervisor or organizer of this event, so that through them I will get your questions and I will try to answer your questions. सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर इसी प्रकार हिंदी लिटरेचर में भी फंडिंग के लिए किस प्रकार से प्रयास किया जा सकता है? सावंत बैरवाजी, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनाइजर्स इस चीज को अभी उनके पास टाइम है या नहीं है। कृष्णा सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. Hello. Sir, what about the Yeah. questions of the students? Students can send their queries Yeah, on yeah. WhatsApp group so that we can discuss later. Because Okay, okay, sir. we are having the next session. Okay, ओके Savant सर। Bairwaji, I hope you understood the things. ओके सर, थैंक यू। Yeah. Over to you, sir. ओके सर, थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया फंडिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Okay, Thank you so welcome, much, sir. sir. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.